Hello everyone. Now let's start with the second component of endomembrane system, the Golgi complex or the Golgi apparatus. We have seen the structure of endoplasmic reticulum, its types and its functions. It is the first part of your endomembrane system. What is an endomembrane system? The system of membranous structures which have related functions, which are closely related to each other in some functions. तो जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, ऐसे कुछ हम सेल ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं. We have seen that endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuole, these are the four components of your endomembrane system. And from that endoplasmic reticulum is done. Now the second component is your your Golgi complex is the second component. It was discovered. अब इसके बारे में भी हम सेम मेथड से पूरा डिस्कशन करेंगे. इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई, पहले तो डिस्कवरी करने वाला बंदा कौन सा सेल्स में प्रेजेंट है, एब्सेंट है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उसके अंदर टाइप्स वगैरह होंगे तो वो और उसके फंक्शंस. तो इस तरीके से हम इसको भी स्टडी करेंगे जस्ट लाइक दैट ऑफ योर ईआर. लेकिन इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है, इसके टाइप्स नहीं रहते. अब गोल्गी बॉडी और द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट वाज नेम्ड बाय ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट who discovered this structure. So Camillo Golgi, he observed them for the first time in 1898 in the cells of nerve cells of barn owl and cat. इनके नर्व सेल्स में, न्यूरॉन्स में देखा इसने सबसे पहले, नर्व सेल्स में बार्न आउल और कैट, नॉर्मल आउल अपने जैसे थे वैसे, और कैट्स बिल्लियों के नर्व सेल्स में ही वाज ऑब्जर्विंग, ही वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, सो ही वाज ऑब्जर्विंग ब्रेन्स ऑफ दीज एनिमल्स and he found that in the neurons there are some reticular structures. Again these are also reticular structures, network like. What do you mean by reticulum? We have seen the meaning in endoplasmic reticulum. Reticulum means network like structure. So this was also the reticular structure having a network of flat disc shaped plate like structures, membranous structures that were placed one above the other. As you can see in diagram, जैसे कि फोटो आपके सामने दिख रहे हैं, तो उसमें आपको जो फोटोज दिख रहे हैं, तो एक के ऊपर एक जैसे कि स्टैक ऑफ कॉइन्स रहता, जस्ट लाइक दैट. जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. You know, we will see it. It is your cisternae. So that was observed by Camillo Golgi, and in his honor, the structure was named as Golgi complex or Golgi body. Camillo Golgi इसको डिस्कवर करने वाला बंदा था, उसके नाम पे Golgi complex और Golgi apparatus, Golgi body, सब एक ही बात है. Apparatus बोलो, complex बोलो, body बोलो, एक ही बात है. Okay. Other names of Golgi complex, let's see that point, क्योंकि MCQ में मिलते हैं आपको. So other names, इसके दूसरे नाम क्या रखे वाले हैं? तो in plant cell, तो प्लांट सेल में हम गोल्गी बॉडी के लिए वर्ड यूज करेंगे डिक्टायोसोम. दिस इज द अनदर नेम ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल. इसके अलावा कई और सारे नाम है, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन रेटिक्युलारे, reticular. Okay, then the middleman of cell, traffic police of cell, courier service or post office of cell. So these are the other names. These are the other names of your one structure Golgi body. एक ही है, उसके नाम है डिक्टायोसोम इन प्लांट्स, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन रेटिकुलर, देन द मिडलमैन ऑफ सेल. ये नाम क्यों पड़े, ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं, कुरियर सर्विस या पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू. जब इसका फंक्शन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. बट दीज आर द अदर नेम्स ऑफ Golgi complex. Okay. Now let's see in which cells these structures are present. So Golgi bodies are present in all eukaryotic cells, सभी में present है, with some exceptions, except your mature cells like mature RBCs
मैच्योर सीयू ट्यूब सेल्स, इनमें अपन ने देखे थे ईआर भी प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ साइटोप्लाज्म था आरबीसी में और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता। एनी अदर सेल ऑर्गेनेल इवन द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी, तो आरबीसी सब चीजों में एक्सेप्शन बोल के आने वाला है। आरबीसी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ साइटोप्लाज्म रहता अंदर और बाहर से उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग रहेगी। सीयू ट्यूब cells are the dead cells, they are without protoplast, they don't have any kind of living material inside them, so they are also the exception. Then after that the mature sperms of mammals, similarly male gametes in bryophytes and pteridophytes, तो इनमें भी इनके भी मेल गैमेट्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट इन देयर मेल गैमेट। ओके, तो दीज आर द एक्सेप्शंस। इनमें प्रेजेंट है ऑल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन दीज सेल्स। प्लस योर प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर आल्सो एक्सेप्शन, उनमें तो कुछ भी नहीं है, नो सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, सो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो विदाउट गोल्गी बॉडीज। ओके, देन ये हो गया प्रेजेंट और एब्सेंट। उसके बाद में आ जाते हैं उसके स्ट्रक्चर पर, डिस्कवरी हो गई, स्ट्रक्चर पर देखते हैं उसके सेल कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में स्ट्रक्चरली इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ, नाउ जस्ट सी द डायग्राम, फोटो जो दिख रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मैं थोड़ा सा 3D फोटो आपको सामने डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 3D फोटो मैं आपको दिखाई देगा। अब ये फोटो समझने के लिए पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब आप अगर किसी के घर पे ज्वार की रोटी आप खाते होंगे, भाकरी वगैरह बना के, तो ज्वार की जो रोटी रहेंगी तो वैसी मोटा सा एक थिक लेयर जैसा इमेजिन करो। ओके, उसको अंदर से हॉलो इमेजिन करो। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर से पूरा हॉलो है। ओके, जस्ट लाइक योर जो कोई भी बैग वगैरह रहेगा ऐसा एक पतला सा सिंगल लेयर का, वो इमेजिन करो। ऐसे बहुत सारे एक के ऊपर एक रख दो, एक स्टैक बन जाएगा उनका, एक ढेर जमा कर दो, सो दैट इज योर गोल्गी बॉडी। ओके, सिस्टर्नीज आर नथिंग बट दी, अगर मैं साइड से देखूं तो इस तरीके से फ्लैट दिखाई देंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर दूसरी सिस्टर्नी, फिर एक और इस तरीके से सिस्टर्नी। देयर आर अबाउट 5 to 15 सिस्टर्नी आर अरेंज्ड वन अबव द अदर, सो इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 components, सिस्टर्नी, tubules and vesicles, and that vesicles are called Golgian vesicles. Okay, cisternae are again your hollow flat sac like structures, as you can see in diagram. विजुअल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, 3D में देखो थोड़ा सा कैसे, एक फ्लैट है, हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एंड दैट स्ट्रक्चर्स, हॉलो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, सो दे आर कॉल्ड द सिस्टर्नी। Tubules, you know, tubules are the connections, tube-like connections, so they can be found here. Tubules are the tube-like connections. Okay, and then here, and tube-like connections, they are tube-like hollow membranous structures. Okay, ट्यूब जैसे रहेंगे, जुड़ा हुआ रहेगा दो सिस्टर्नी के बीच में। And vesicles are the round membrane bound structures, they are found at both the ends. इधर भी रहेंगे कुछ vesicles, some vesicles are here, some are joining with this one, this end, and they are coming out from this end. इधर से अंदर आएंगे और इधर से सब बाहर निकलते जाएंगे। So they are also membrane bound structure, just like small balloons. Okay, circular round balloon shaped structures, round membrane bound structures. These are tube like, these are round membrane bound structures. Okay, having some material, इनके अंदर भी कुछ material रहेंगे। Okay, so these are the 3 components. Again, same components, cisternae, tubules and vesicles. They are also present in ER. Okay, now let's see the location of this. First of all, location देख लो अगर आप देख रहे हो. So they are present in association, close association. They are present in close association with your एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, उसके एकदम काफी नजदीक तुम्हारे गोल्गी बॉडीज अटैच्ड। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज ईआर, उसमें फिर ये रफ ईआर,
ओके, दिस इज स्मूथ ईआर और फिर यहाँ पे तुम्हारा गोल्गी बॉडी. जनरली दे आर प्रेजेंट इन पेरीन्यूक्लियर स्पेस. Golgi body is present in perinuclear space. Write it down. Peri means around and nuclear means nucleus, and they are found in close association with ER. Golgi bodies are found in close association with ER because of their function. Because of their function, whatever is synthesized here is then sent here, and then it is processed and sent somewhere else. We will see it in function. But due to some functional association, they have close locations. Due to some functional similarities, they have close location. ये इसको कुछ मदद करेगा, ये इसको कुछ मदद करेगा और दोनों इसलिए आसपास बैठे रहते हैं. So Golgi bodies are found in perinuclear space in close association to that of ER. ER is in close association to nucleus. ER is in close association to nucleus, and Golgi bodies are in close association to ER. Means ER is located in between nucleus and Golgi body. दोनों के बीच में बैठा है ER. ठीक है. So now let's see what are the two functional areas. अब यहाँ पे दो faces तैयार हो रहे, देखो यहाँ पे दो फेस तैयार होते तुम्हारे. Okay, this is cis phase and this phase is known as trans phase. मैंने तुमको अभी बोला कि रोटियां इमेजिन करो, तो रोटी एक के ऊपर एक अगर आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, अगर वो रोटी को थोड़े से बीच में से इस तरीके से आपने प्लेट जैसी इमेजिन किया, प्लेट जैसा, तो फिर प्लेट्स प्लेट्स प्लेट्स, अगर आप एक के ऊपर एक नाश्ता प्लेट्स जो आते हैं अपने, तो नाश्ता प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में क्या होता, एक इस तरीके का फेस तैयार होगा. ओके, राइट, और एक पीछे वाला थोड़ा सा इधर वाला फेस तैयार होगा. सो दिस फेस इज कॉन्वेक्स फेस and this face is concave face. जो ER के नजदीक वाला फेस है, याद रखो बेटा, ये सबसे मुश्किल लगता, बाद में ये चीज कंफ्यूज होती कि सर वो फेसेस ऑफ गोल्गी बॉडी हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमको याद नहीं होते. मैं उसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है. पहले तो लोकेशन ध्यान में आ गई क्या, उसके बाद में सिस और ट्रांस फेस किसको बोलने का, तो जो फेस उसका गोल्गी बॉडी का जो भी फेस, जो भी चेहरा, जो भी हिस्सा ER के नजदीक है, वो रहेगा सिस फेस. इट इज कॉन्वेक्स. इट इज कॉन्वेक्स. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेस. फॉर्मिंग फेस या फिर F फेस. फॉर्मिंग फेस, F फेस. इसका एग्जैक्ट अपोजिट नीचे वाला देखो. अब ये वाला फेस इस तरीके से है, थोड़ा सा वेसिकल्स यहां से एंटर होंगे, ठीक है. दिस इज सिस फेस और कॉन्वेक्स फेस, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेस और F फेस. एग्जैक्ट अपोजिट देखो इधर साइड में, दिस इज कॉन्केविटी, हियर इट इज कॉन्केव और ट्रांस फेस, ऑल्सो नोन एज कॉन्केव फेस, ऑल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेस और M फेस. मैच्योरिंग का M, ये मैच्योर हो, तो वो दो चार बीच में जो सिस्टर नहीं रहेंगे वो पूरे चले जाएंगे, 5 6 7 8 जितने भी सिस्टर नहीं है, और लास्ट वाली सिस्टर नहीं जो रहेंगी इस तरीके से वो कॉन्केविटी दिखाएंगी और वो बड़ी रहेंगी, सबसे बड़ी. सो वो वाला जो एंड रहेगा गोल्गी बॉडी का, इट इज कॉल्ड दी ट्रांस फेस, ऑल्सो नोन एज कॉन्केव, मैच्योरिंग और M फेस. अब यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्केव वाला पार्ट हमेशा कंफ्यूज करता. सिस ट्रांस तो याद रहते, दीज आर आल्सो इन केमिस्ट्री. एक एंड रहता सिस एंड, दूसरा ट्रांस रहता, तो वो तो याद रहते. बनने वाला एंड फॉर्मिंग, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स स्टार्ट होगा और यहाँ पे से अल्टीमेटली रिलीज होंगे वेसिकल्स मैच्योर होकर. उसमें जो भी केमिकल रहेगा वो परफेक्टली केमिकल रहेगा, एखादा एंजाइम बने वाला, मैच्योर हुआ वाला एंजाइम वगैरह रहेगा, तो ये फॉर्म हुआ वाला रहेगा, इसीलिए मैच्योरिंग फेस रहेगा. अब इसका कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे याद रखना, तो आपको याद क्या रखने का है, TC याद रखने का है. TC देखो दोनों तो C है, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों C से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन डिफरेंस ये है, यहाँ पे है स्पेलिंग का, यहाँ पे केव है, वहां पर वेक्स है. आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन प्लीज ये सुनो, अभी आपको आसान लगेगा, लेकिन बाद में जब अगले साल एग्जाम, उसके बाद एग्जाम में जब आप दोगे तो आपको ये वर्ड याद नहीं आते, कॉन्वेक्स कॉन्केव कौन सा है, किसको कॉन्वेक्स से कौन सा कॉन्केव, दो ही शब्दों में कंफ्यूजन हो जाती है. तो TC याद रखो, T मतलब ट्रांस, C मतलब कॉन्केव वाला C है, वो ऑटोमेटिकली ये CV हो जाता, फिर
CV या CX याद रखो सीधा सीधा इसका, CX याद रखे तो भी हो जाएगा CX, CX इट इज कॉन्वेक्स, TC ट्रांसवर्स कॉनकेव, ठीक है। तो इस तरीके से दो फेसेस याद रखो, दोनों में कॉन्केविटी किधर है, कॉन्केव फेस कौन सा है, ट्रांस, किसमें कॉन्वेक्सिटी है, सिस, इसमें मैच फॉर्मिंग है, ये मैच्योरिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड F फेस, इट इज आल्सो कॉल्ड M फेस, दीज आर द टू फेसेस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, सिस फेस किसके नजदीक है, सिस फेस इज प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन टू ER एंड ट्रांस फेस इज अवे फ्रॉम ER, trans phase is away from ER. Okay, so these are the structures, tubules, vesicles. Vesicles are these Golgian vesicles because they are formed from Golgi body. इसके ER के vesicles रहते हैं endoplasmic vesicles, reticular vesicles, और इसके जो vesicles रहेंगे these are the Golgian vesicles. They will contain the modified chemicals, mature chemicals, processed chemicals. Okay, so this is what the structure of Golgi body. Now let's come to the function of Golgi body. So first most important function of Golgi body is the processing, packaging and transport of material. Processing, packaging and transport of material intracellularly और एक्स्ट्रासेल्युलरली, सेल के अंदर है या फिर सेल के बाहर, दोनों तरफ जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो काम तुम्हारा गोल्गी बॉडी में। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ER के हमने कॉमन फंक्शंस देखे थे, तो कॉमन फंक्शंस ऑफ ER में आपको मैंने फोर्थ फंक्शन बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन दी सेल और आउटसाइड दी सेल। मैंने आपको बोला था कि वो फंक्शन मैं आपको गोल्गी बॉडी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, दोनों के मिलके काम होते। तो जैसे कि हमने अभी देखी, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, न्यूक्लियस के पास में ER है तुम्हारा, और ER के पास में भी तुम्हारी गोल्गी बॉडी है, ठीक है। तो वो जो फोटो आ रहा है वो फोटो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कैसे होता है। देखो, न्यूक्लियस, ER, गोल्गी बॉडी, ये वाला सिस फेस, ये वाला ट्रांस फेस, राइट। सो ये सिस, ये ट्रांस। अब क्या होता, जो भी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आती उसके हिसाब से DNA का mRNA बनेगा, mRNA से यहाँ पे राइबोसोम्स बैठे वाले, ribosomes will synthesize protein and that protein is then present in the cisternae of ER. Proteins are released in the cisternae of ER. Cisternae are hollow sac like structure, उनमें वो प्रोटीन रिलीज हो जाएंगे। तो वो जो प्रोटीन है यहाँ पे पड़े रहेंगे ER में। मैं एक ही सिस्टरनी ड्रॉ कर रहा है ER की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स है वो इस तरीके से अंदर सिस्टरनी में पड़ा है। अभी वो प्रोटीन्स को मैच्योरेशन नहीं होगा, वो प्रोटीन्स अभी रेडीमेड नहीं है, यूज करने लायक नहीं है, उनको कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हमको करने पड़ेंगे। वो प्रोटीन्स अभी स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनकी फोल्डिंग करना पड़ेगी, उनको 3D स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, सो दैट दे बिकम वेल वर्किंग प्रोटीन्स। तो उसको हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोटीन्स है, दैट प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी में हमको पहले ये प्रोटीन्स भेजने पड़ेंगे। क्या होता है, ये प्रोटीन यहाँ पे पैक होते, जमा होते, और फिर एक ऐसा एक बबल जैसा तैयार होता है यहाँ पर ER के सिस्टम से। वो बबल के अंदर सब प्रोटीन्स भर जाते और वो बबल अल्टीमेटली डिटैच हो जाता, उसके अंदर रॉ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दैट वेसिकल। दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेसिकल, इसका वेसिकल which is containing raw proteins. This vesicle will enter the cisternae of Golgi body from cis phase. cis phase पे यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये cis phase है, ओके। तो ये जो वेसिकल है, इट कम्स हियर, इट जॉइंस here with this membrane and it becomes the integral part of this membrane and it releases the proteins into this cis cisternae। यहाँ पे वो प्रोटीन्स रिलीज कर देगा एंड इट विल जॉइन, और ये गायब हो जाएगा यहाँ से, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस। थोड़ा सा सिस्टरनी का साइज बढ़ जाएगा, ओके, बट इट विल रिलीज द प्रोटीन्स इनटू सिस फेज। अब ये प्रोटीन्स क्या होंगे, यहाँ पे मॉडिफाई होंगे, यहाँ पे उनका मॉडिफिकेशन होगा, प्रोटीन्स की फोल्डिंग होंगी। जो 10,000 चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, 10,000 अमाइनो एसिड्स, 10,000 अमाइनो एसिड्स को क्या होगा, इस तरीके से फोल्ड होंगे और फोल्डिंग होंगी और फोल्डिंग होंगी और उनके 3D स्ट्रक्चर तैयार होंगे, ओके। एक लार्ज साइज का प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार होंगे।
सो वो प्रोटीन यहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा। प्लस साथ ही साथ कभी कभी प्रोटीन के साथ में जो प्रोटीन आने वाला है उस प्रोटीन के साथ में अपन लिपिड ऐड करेंगे। हो सकता है उस प्रोटीन के साथ में हम कभी कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देंगे। प्रोटीन को चेंज करने का है, प्रोटीन को स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बनाने का, वर्केबल बनाने का है, तो उसमें लिपिड ऐड करो, क्या बन जाएगा? लाइपोप्रोटीन। क्या बनेंगे फिर? लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल। तो वो जो प्रोटीन है इस तरीके का, उसको यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से जो प्रोटीन है तुम्हारा, उसको यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। ठीक है, शुगर अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लाइकोप्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड, ग्लाइको मतलब शुगर, ग्लूकोज पे से याद रख सकते हैं। सो प्रोटीन्स कंटेनिंग शुगर, प्रोटीन्स कंटेनिंग लिपिड्स। तो ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, मतलब प्रोटीन को अपन प्रोसेस कर रहे हैं, वो रॉ प्रोटीन था उसको अपन फोल्डिंग कर रहे हैं। वी आर डूइंग लाइक एडिंग लिपिड्स, वी आर एडिंग ग्लूकोज टू दैट प्रोटीन एंड वी आर मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्ग वर्केबल प्रोटीन। ये प्रोटीन फिर ऐसे यहां से जो ट्यूब है वो ट्यूब के थ्रू अगली सिस्टर्नी में एंटर करेगा। उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होंगे, मिथिल ग्रुप ऐड होगा, कुछ होना होगा, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा का ग्रुप रिमूव करना होगा, वो ग्रुप रिमूव होगा। ऐसा करते करते अल्टीमेटली वो लास्ट वाली सिस्टर्नी तक पहुंच जाएगा प्रोटीन, एंड यू विल हैव अ मैच्योर प्रोटीन which can be now used as the functional protein. For example, melanin pigment, अपने स्किन के जो पिगमेंट है विच डिसाइड्स योर स्किन कलर, इट इज अ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन यहाँ से ऑर्डर आएगा न्यूक्लियस से स्किन सेल्स में, स्किन सेल्स ईआर को बोलेंगे मेलानिन बनाने, तो मेलानिन प्रोटीन की लॉन्ग चेन तैयार होंगी, लेकिन वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, तो ईआर से होकर वो मेलानिन प्रोटीन इधर एंटर करेगा सिस फेज में, यहां से उसका मॉडिफिकेशन होगा, इट विल बिकम वर्किंग मेलानिन एंड इट विल गिव द कलर। उसके बाद फिर वो यहाँ से पैक होके निकलेगा। अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन बन गया वो यहाँ पे फिर जमा हो जाएगा इसी तरीके से, और यहाँ पे एक वेसिकल तैयार होगा विच इज कंटेनिंग योर लार्ज साइज्ड प्रोटीन। दिस वेसिकल विल डिटैच फ्रॉम द ट्रांस फेस, वेसिकल विल डिटैच फ्रॉम द ट्रांस फेस एंड इट विल बी डिपॉजिटेड इन द अपर लेयर ऑफ स्किन। वो तुम्हारा स्किन कलर वो जाके वहां पे फुट जाएगा, और वो प्रोटीन वहां पे जैसे ही लाइट को एक्सपोज होगा इट विल अपीयर ब्राउन टू ब्लैक कलर। जितना ज्यादा मेलानिन प्रोटीन उतना ज्यादा डार्क स्किन कलर। नेचुरली इट इज ब्लू इन कलर, बट व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट मेलानिन बिकम्स ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। ओके, तो इस तरीके से प्रोटीन की पूरी अपन ने क्या करे, पहले तो यहाँ पे तैयार करे थे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोम्स एंड आरईआर। सिंथेसिस के बाद ट्रांसपोर्ट किए क्या अपन ने उसको, इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईआर टू सिस फेस, फ्रॉम ईआर टू सिस फेस, सिस फेस से फिर कहां तक गया वो, ट्रांस फेस, और ट्रांस फेस से अल्टीमेटली कहां पे गया, गोल्जियन वेसिकल, और वेसिकल के बाद उसको भेज दिया अपन ने अप टू टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल्स, जहां पे अपने को उसको रिएक्शन दिखाना है, काम करवाना है, वहां उसको अपन ने भेज दिया। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस is known as processing, this process is known as processing। अपन ने पूरी प्रोसेसिंग की, देन पैकेजिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सो ऑफ वेरियस मटेरियल, जनरली प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स। अपने ग्लाइकोलिपिड्स एसईआर में जो तैयार किए थे तुमने, एसएआर में ग्लाइकोलिपिड्स, वी हैव सिंथेसाइज्ड लिपिड्स इन एसएआर, उनका भी मॉडिफिकेशन होकर अपन उनसे कुछ तैयार करवा के ले सकते। एंजाइम्स, उनका भी इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। और ये सेल के बाहर तक, अब ये फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, इस तरीके से सेल बंद हो गई, तो ये जो वेसिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर वो कुछ भी मटेरियल रिलीज कर देगा। इट विल रिलीज द मटेरियल आउटसाइड द सेल इन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, वहां पे रिलीज कर। हॉर्मोन्स वो इस तरीके से रिलीज हो जाएंगे, आजू बाजू ब्लड के साथ बह के निकल जाएंगे। लाइक दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। देयरफॉर गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड मिडल मैन ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, मिडल मैन। क्यों? क्योंकि वो बीच का आदमी है ना, जो ये प्रोसेस में हेल्प कर रहा तुम्हारे को। ईआर में तो बना दिया था, लेकिन अगर ये नहीं रहता तो ये पूरी प्रोसेसिंग होती थी क्या?
So therefore it is called middleman of cell. Secondly, it is also called post office. जो भी बन रहा पहले यहाँ पे आ रहा, फिर यहाँ से जिधर भेजने का है उधर भेज रहे लेटर्स, उस तरीके से हो रहा. कुरियर सर्विस एक प्रकार की पैकेजिंग हो रही, रैपिंग वैपिंग प्रोसेसिंग. So it is therefore called three names: middleman of cell, post office और the courier service of cell. ट्रांसपोर्ट कराना हो एक प्रकार से, therefore it is called courier service, post office, middleman of cell. middleman वाला MCQ आपको बिल्कुल मिलेगा. Which of the following cell organism is regarded as middleman of cell? So it is Golgi body, not ER. Okay, so this is what the first most important function. दूसरा फंक्शन ये वाला बना दो. Addition, we are doing what? Addition of lipids to proteins. Okay, it is called lipoxylation. Lipoxylation, also known as glycosidation. Also known as glycosidation. And ग्लाइकोसिडेशन, देखो नाम ग्लाइकोसिडेशन है, अपने को लगता है शुगर से रिलेटेड है. इट इज सिडेशन. यहाँ पे अगर इसकी बात करूं मैं, व्हेन यू आर एडिंग कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन्स, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. इट इज नथिंग बट योर ग्लाइकोजाइलेशन. पहले तो ये दो टर्म समझ के लो भला क्या है. व्हाट इज लाइपोजाइलेशन? एडिशन ऑफ लिपिड्स टू प्रोटीन्स टू फॉर्म लाइपोप्रोटीन्स. व्हाट इज glycosylation? Addition of carbohydrates or sugars to proteins to from glycoproteins. Silation हो गया. Silation नॉर्मल डेफिनेशन डिफाइन करता, लिपिड ऐड करना. लाइपोजाइलेशन, शुगर ऐड करना. ग्लाइकोजाइलेशन. लेकिन सीडेशन, ग्लाइकोसीडेशन, इट इज द अनदर नेम गिवन टू लाइपोजाइलेशन. It is the another name given to lipoxylation. Okay, so these are the next two functions you can do. Add these ones. Okay, next if you come to the function, it is the formation of primary lysosome. Formation of primary lysosome. अब ये क्या रहते हैं lysosomes? We will see in lysosomes. तो भी बता देता हूँ, ये जो वेसिकल्स तैयार हो रहे हैं, sometimes these vesicles may have हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स यहां से निकलेंगे. दे विल ऑल ज्वाइन, ऑल दी स्मॉल वेसिकल्स विल ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज प्राइमरी लाइसोसोम. 4-5 वेसिकल जोड़ दो, ऐसे बड़ा सा एक लड्डू तैयार हो जाएगा, और बड़े बड़े लड्डू जोड़ दो तो एक थोड़ा बड़ा सा लाइसोसोम तैयार हो जाएगा. इट इज कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सो दैट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम. वी विल सी इट इन लाइसोसोम्स. ओके, देन formation of acrosome of sperm. Formation of acrosome of sperm. Formation of acrosome of sperm in mammals or human sperm भी देख सकते हैं आप. So as you can see the photo of human sperm, this is the ultrastructure of under microscopic view of your ह्यूमन स्पर्म. तो ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है इसमें आप देख रहे हो, तो जो स्पर्म हेड है, ओके, फिर उसका नेक रीजन है, और फिर उसके बाद उसकी टेल है. ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है. हेड के अंदर आप यहाँ पे कैप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोजोम. एक्रो मीन्स हेड एंड सोमा मतलब बॉडी. सो द हेड इज कवर्ड बाय द एक्रोजोम, एंड देन इज योर न्यूक्लियस, यहाँ पे डीएनए. ओके, देन हियर इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज टेल. सो दिस इज व्हाट द ह्यूमन स्पर्म. इसमें आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूक्लियस के सर ऊपर, सो दिस इज योर एक्रोसोम. इट इज मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी. It is modified Golgi body. Golgi body is absent here. It gets modified into acrosome containing an enzyme known as hyaluronidase. रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो, हमेशा के लिए काम आएगा, कई बार एग्जांपल आएगा. Hyaluronidase. The sperm head, also known as the cap of sperm, also known as acrosome, consists of an enzyme hyaluronidase. It is a hydrolytic enzyme hyaluronidase. It is useful for dissolving the outer layer of your ovum, female gamete.
फीमेल गैमेट की आउटर लेयर रहती, इट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा विच कंसिस्ट ऑफ अ एसिड, hyaluronic acid. Corona radiata is the outer layer of human ovum. It consists of the hyaluronic acid. अब ये एसिड की वजह से क्या होता है, कोरोना रेडिएटा एकदम थिक बन जाती, उसके सेल्स एकदम पैक चिपके रहते, ग्लू के जैसा काम करता, वो सेल्स को निकलने नहीं देता. जब स्पर्म आएगा वहां पर तो स्पर्म को एंटर करने का रहेगा अंदर की तरफ फॉर फर्टिलाइजेशन, बट दिस हाइलुरोनिक एसिड विल नॉट अलाउ इट टू एंटर. तो स्पर्म हेड जब यहाँ पे आएगा, स्पर्म का हेड, इट विल बर्स्ट दिस एक्रोसोम एंड इट विल रिलीज hyaluronidase over that surface of corona radiata. Due to this hyaluronidase, the hyaluronic acid gets dissolved, it gets dissolved और फिर स्पर्म आसानी से उसके अंदर एंटर कर सकता. तो स्पर्म की एंट्री के लिए एक्रोसोम का होना बहुत जरूरी है. स्पर्म की एंट्री इनटू ओवम ये होने के लिए एक्रोसोम होना जरूरी है, क्योंकि एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइम हाइलुरोनिडेज which dissolves the hyaluronic acid present in the corona radiata of human ovum. ये मैकेनिज्म हम एचआर में देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बट स्टिल अभी आपको फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म आया, तो एक्रोसोम क्या करता है वो आपको पता होना, इसलिए बता दिया है. तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है. एंट्री ऑफ स्पर्म करने के लिए, हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम चाहिए. दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द एक्रोसोम और द कैप ऑफ स्पर्म. Okay, so these are the four functions of your Golgi body. इसके अलावा कई सिक्रेटरी फंक्शंस है, कई सारे सेल्स में सिक्रीशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. सो दीज आर आल्सो अदर फंक्शंस. ये ऐसी ट्रांसपोर्ट अभी जो देखे थोड़ी देर पहले अपन ने, उसी तरीके से सेल के बाहर कुछ केमिकल सच एज म्यूकस, मिल्क प्रोटीन्स इन फीमेल्स, मिल्क. तो मिल्क प्रोटीन जो रहते हैं वो भी मिल्क, जो मैमरी ग्लैंड के सेल्स रहेंगे, सो दैट सेल्स विल रिलीज दिस प्रोटीन्स इनटू मिल्क, और फिर अल्टीमेटली मिल्क इज रिलीज्ड, सो दैट म्यूकस. ओके, म्यूकस इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी लाइनिंग. ओके, इन जनरली जहां ओपनिंग है, जहां से अपनी बॉडी के, वहां म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, वहां पर म्यूकस सिक्रेट करने का काम गोल्गी बॉडी ये करें. सिक्रेटरी फंक्शंस ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पर भी जितने सिक्रेटरी सेल्स है वो अलग अलग एंजाइम्स तैयार करते हैं, प्रोसेस करे वाले ईआर में बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली प्रोसेसिंग होंगी गोल्गी बॉडी में, एंड देन दैट प्रोटीन्स एंजाइम्स दे विल बी रिलीज्ड इनटू द डाइजेस्टिव जूसेस. सो सारे के सारे एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट, secretion of various enzymes in various systems, so that is done by your Golgi bodies. Okay, so this is all about your Golgi body. अब इसका फंक्शन समझ में आपको किस तरीके से ईआर के साथ में एसोसिएटेड है, न्यूक्लियस के साथ में एसोसिएटेड है, तो इस तरीके से फिर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा हिस्सा है. ओके, कंप्लीट एक बार देख लो. इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शंस मिले तो वो समझने की कोशिश करो. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देम, जस्ट आस्क मी वंस, आई विल एक्सप्लेन. Okay, but these are the most important enough functions. Okay, glycoproteins बनाना, glycolipids बनाना, then primary lysosomes and acrosome बनाना, these are the most important functions. Here your Golgi body is done. We'll study lysosomes and vacuoles in our next lecture.